So work is equal to force into displacement. Okay. The very important question is, force is vector quantity or scalar quantity? Ma'am, vector. Vector quantity. And displacement is vector quantity or scalar quantity? Ma'am, vector. Again vector. But work is a scalar quantity. This is very important, that work is a scalar quantity. It doesn't depend on the direction, because when we multiply or we get product of two vector quantities, we can get the new quantity can be scalar or vector both. In this case, work is a scalar quantity, right? Yes, ma'am. how much work is done, that depends on displacement. Yes, very good. How much displacement is there? If displacement is more, it means work done is more. And the other factor is Ma'am, force. force. Okay, so how much force we have applied, on that work depends, and how much displacement is there, on that force depends. Okay, work depends. Now, what is the unit of force? The unit of Ma'am, work, Newton. unit of work is joule, denoted by capital J. Okay, or we can write Newton into second. Sorry, Newton into meter, because Newton is the unit of force and displacement is in meter as a unit, and Newton into meter is written as the joule. Okay, this is called its SI unit, and there is one CGS unit also for this. This question is also very important. What is the CGS unit for the work? And that is ERG. ERG. CGS unit इसकी क्या बच्चे? ERG. And 1 joule is equal to 10 raised to power 7 ERG. Ma'am, what is the meaning of CGS unit? Okay, yes, CGS unit. So first, I am telling you MKS. MKS is meter. देखो हमारे पास 3 बेसिक यूनिट हम लेते हैं बेटा, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम. तो लेंथ हम किस में बता रहे हैं? इन मीटर्स. मास हम किस में बताएंगे? किलोग्राम्स में. और टाइम किस में आएगा बेटा? इन दी सेकेंड्स. This is called MKS system. Okay. This is taken for SI unit, and in CGS case, this length is centimeter. G for, आप बताइए बच्चे. G for Ma'am, gram. grams. And time remains. Ma'am, second. Time अभी भी किस में रहेगा? Seconds में. So MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम, जो MKS सिस्टम है वो इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्टेड है. सो दैट इज कॉल्ड SI यूनिट और इंटरनेशनल यूनिट, है ना. तो उसको SI यूनिट कह देते हैं, CGS को अभी भी हम CGS यूनिट ही कहते हैं. सो 1 joule, how 1 joule is equal to 10 raised to power 7 ERG. Okay, now find the value of 0.5 joule in ERG. How can you calculate this? 5 into 10 raised to power 8. 5 into 10 raised to power 8. कैसे फाइंड किया बेटा? क्योंकि हमें पहले 0.5 को 10 raised to power 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उसके बाद जो 0.5 है उसका 5 जो डेसिमल में है उसको हमें वंस प्लेस में लाना पड़ेगा. सॉरी, ओके.
देखो बच्चे, आपको इस जूल को हटाना है। इस जूल को हटाने के लिए आपको उसकी जगह पे क्या रखना है, 10⁻⁷। तो 0.5 के साथ इंटू 10⁻⁷। सो व्हाट इज योर आंसर? 5 into 10⁻⁶ arc. Deva got this point? Yes, ma'am, I told it wrong. I told it 8. Yes, you told wrong, but now you got the point. देखो आज की डेट में आप गलत हो सही हो, that doesn't matter. एग्जाम टाइम में आपका आंसर सही आना चाहिए बस. The most important is कि एग्जाम में आप गलत नहीं होने चाहिए. आज हमें कुछ सीखना है, इसीलिए तो हम क्लास में हैं, है ना? एक्सक्यूज Now- मी मैम, Yes. मैम जो अर्ग है मैम, ये किसी साइंटिस्ट का नेम था? नो, मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा. अगर साइंटिस्ट का नाम होता तो मैं उसको कैपिटल में लिखती बेटा, ई को. ओके मैम. Okay. Now, work can be positive, work may negative, or it may be zero. ठीक है, ये तीनों चीजें पॉसिबल है बेटा. वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है. एक्चुअल में जब हम वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. लाइक कॉस थीटा वाली बात मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए ये एक बॉक्स है. इस बॉक्स पे हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं. हमने रस्सी ली बेटा और इस तरफ से खींच रहे हैं. ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या बेटा, ये वाली, और डिस्प्लेसमेंट भी इसका इसी तरफ हो रहा है. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? Yes, Deva. Raise hands. 180 degree. How much? Ma'am, 180. 180. Okay. These two are overlapping each other. Okay. What is the angle in condition A, Anaisha? Ma'am, 90. 90. What is the angle in B? Ma'am, 180. Aryan, Ma'am, 180. 180. And Ritanjay, what is the angle in the case of C? Ma'am, 0 degree. 0 degree. और They are 60 degree. overlapping. Overlap कर रहे हैं बेटा, मेरे को शो करना था इसलिए मुझे displaces with some angle. So in this case, force and displacement both are in the same direction. जिस direction में force लग रहा है बेटा उसी direction में displacement है. In this case, the angle is 0. And what is the value? This theta is that angle between force and the displacement. Yes, Simran? Okay. So cos 0 degree is 1. So in this case, the work done is positive. जब displacement और force both are in the same direction, or the angle is between force and displacement, the angle is between more than 0 to 90 degree, means less than 90 होना चाहिए. In that case, work is positive. ठीक है, but angle should be less than 90. Right? It is negative क्योंकि आपको पता है यहाँ पे cos थीटा की वैल्यूज आप पुट करोगे तो वो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आती हैं, और प्लस में वैल्यू आने के कारण ये सब क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव वर्क. और अगर आप यहाँ पे जो एंगल है बच्चे, एंगल आ गया 90 to 180, तब cos थीटा की वैल्यू जो है दैट इज नेगेटिव. 90 से ज्यादा होना चाहिए, नॉट एट 90. 90 अभी काउंट नहीं करना हमने. 90 से ज्यादा और 180 के बीच में है. इन दैट केस द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज नेगेटिव, सो वर्क डन इज नेगेटिव. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज एंगल 90 डिग्री व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द force applied.
मैम 0. इन दैट केस cos 90 डिग्री अप्लाई करोगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड cos 90 डिग्री इज 0, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क whatever is the force, whatever is the displacement, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, so work is equal to 0. Right? Can you give me any example when there is work is 0? जीरो वर्क के एग्जाम्पल दीजिए. And when we are unable to move a heavy box. Yes, बिल्कुल ठीक है. When we are unable to move a heavy box, there is one heavy box and we want to move it. We are applying force, but for वो मूव ही नहीं हो रहा. Like आप वॉल ही ले लो, अभी आपके सामने वॉल होगी, है ना, उस वॉल को आप पुश करने की कोशिश करो, आप फोर्स लगाए जा रहे हो, बट दैट इज नॉट मूविंग, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. सो फर्स्ट केस आ गया, इन केस ऑफ नो डिस्प्लेसमेंट, देन एस की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, वर्क इज 0. ठीक है, और कोई? यस देवा. मूव होता है हाँ, स्पेस में, वैक्यूम में. वैक्यूम में ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं उनमें फोर्स के बिना वो एक स्ट्राइट लाइन में मूव होते हैं. यस, वहां पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो बिना फोर्स के वो मूव कर रहे हैं, बिकॉज दे, हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन दे आर मूविंग, तो बिना फोर्स के वो मूव कर रहे हैं, सो देयर इज नो फोर्स. सो सेकंड केस, व्हेन देयर इज नो फोर्स, देन आल्सो वर्क डन इज 0. डिस्प्लेसमेंट तो हुई पर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो देन इट इज W इज इक्वल टू 0. ओके, नो डिस्प्लेसमेंट का एक केस तो हमने कर लिया बेटा कि बॉक्स पे हमने या वॉल पे हमने फोर्स लगाया बहुत ज्यादा, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क 0 कर. क्या और कोई केस बता सकते हो जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो? यस रितंजय. मैम मेरा डाउट था कि नो डिस्प्लेसमेंट में अगर फॉर एग्जांपल लें, एक बॉल ले लें, उसे थ्रेड से टांग दें और उस पर फोर्स लगाएं, तो मैम थोड़ी देर बाद वो खुद ही डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएगा. मैम उस समय भी हम लोग वर्क 0 कहेंगे? नहीं, वहां पे आपने आप हर एक एक मिनट. यस, हाँ, अब बात करते हैं. क्या बोला बताया बेटा आपने? हाँ, मैंने देखो वहां पे ये है कि आपका एट द एंड आ गए ना बेटा, वहीं पे आपने पहले तो फोर्स लगाया, तो जो डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है उसमें वर्क क्या हुआ, मान लो आपने ये बॉल ली, ठीक है, ये हो गया. अब क्या हुआ, आपने फोर्स लगाई, यहाँ पे मूव किया, फिर ये इधर मूव किया, वापस भी तो आएगा ना इधर. यस मैम, ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा. हाँ, तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मैम? एंड रेस्ट पे आ जाएगा. रेस्ट पे आ जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0. देन आल्सो वर्क डन इज 0. ओके, ये एक एग्जांपल हो गया. एक और एग्जांपल बताओ. देखिए, मान लीजिए कोई भी चीज मूव कर रही है सर्कल में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मैम 0. 0. 2 पाई आर. 0 Yes. कवर कंप्लीट. मैम डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. इन दिस केस आल्सो डिस्प्लेसमेंट इज 0. अगर एक व्हीकल जो है, लाइक आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल चलाते चलाते सर्कल में चला रहे हो और सर्कल में वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मींस नो वर्क इज डन बाय यू. राइट? आपने एक कार ली, कार को चला दिया, तो वर्क डन बाय द कार और इंजन इज 0 अकॉर्डिंग टू फिजिक्स.
आपने साइकिल चलाई, पूरा सर्कल, आप थक गए, आपको स्वेटिंग भी हो रही है, बट वर्क डन इज 0 अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। यस सिमरन। मैम हम बोलते हैं कि जब हम ए से शुरू हुए हमारी जर्नी और मैम हम बी पे आए, हम वापस ए पे आ गए, तो मैम ऐसे में डिस्प्लेसमेंट 0 जाता है, तो मैम हमारा वर्क डन भी जब हम वापस ए पे आते 0 हैं तब बिल्कुल, दैट विल बी 0। ठीक है, ओके मैम। ओके। एक पर्सन है, उस पर्सन ने हाँ हम ले लेते हैं, हम मूव ही कर रहे हैं, या आप मान लो आपके पास एक हैवी बैग है, आपका स्कूल बैग है ना, आप स्कूल जा रहे हो, तो घर से चले, स्कूल का बैग उठाया और चल रहे हो, चलते 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 आप स्कूल पे पहुंच गए, वॉक करके जा रहे थे, तो कितना वर्क किया आपने? एक बार फिर से रिपीट करना। आप एक पर्सन या कोई स्टूडेंट है जो मूव कर रहा है, he is having his school bag and moving from home to school. तो उसकी जो ये वॉक है बेटा होम टू स्कूल, कितना वर्क होगा? मैम जितना उसने मैम स्कूल डिस्प्लेसमेंट बैग हुआ का मैम जितनी नहीं, उस एनर्जी पर्सन ने, बैग स्कूल बैग ने उठाने तो के कोई लिए वर्क ही नहीं किया और बेटा, उस फिर स्कूल चलने बैग के का लिए तो कोई दोनों वर्क ही के नहीं है, वर्क हमने किया, उस पर्सन ने किया, कितना वर्क किया उसने? मैम उस डिस्टेंस बैग का को और उठाने में, बैग उस का। बैग को मूव करवाने में उसने कितना वर्क किया? मैम 0। 0। अनायशा बिल्कुल ठीक है। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्क डन इज 0 इन दिस केस? मैम वो 90 डिग्री से था, मतलब किससे 90 डिग्री पे था बेटा ये? मैम लैंड के। मैम जैसे मैम देखिए मैम, बैग को अगर हम हम उसका एंगल बैग को बनाए इसने यहाँ मूव किया, ठीक है, बैग उसने अपने हैंड में कैरी कर रखा था या अपनी बैक पे कैरी किया था, तो जो बैग है बेटा उसने उसको पुल अप किया हुआ है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यस ठीक है, मैम, तो मैम तो वो ये 90 ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, देयरफॉर द वर्क डन बाय द पर्सन और दैट चाइल्ड इज 0 अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। हालांकि वो थक गया बिल्कुल, ठीक है, अगर वो बच्चा एक जगह पे बस का वेट कर रहा है, वैन का वेट कर रहा है, और उसने अपना बैग उठा रखा है, 15 मिनट हो गए, उसकी वैन नहीं आई, उसका हाथ थक गया, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स द वर्क डन इज 0। व्हाई? क्योंकि वो एक ही जगह पे खड़ा है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। मैम अगर झुक के चल रहा हो तो? नहीं, झुक के भी चलेगा तो भी वो चल तो उतनी हाइट पे रहा है बेटा, उतना कम फोर्स लगा रहा है, जितना ऊपर तक लेके जाओगे ग्रेविटी के अगेंस्ट उतना फोर्स लगना है, फोर्स कम है, बट डिस्प्लेसमेंट अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो वहां पे एंगल 90 डिग्री हो गया, वो वैल्यू 0 होगी। ओके मैम। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस। नेक्स्ट इज एनर्जी। नाउ व्हाट इज एनर्जी? यस अरहम। यस सिमरन। मैम द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। Yes, capacity to do work is called energy. एनर्जी बहुत ज्यादा फॉर्म्स में मिलती है बेटा, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल के कारण जो एनर्जी है। सो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइप की एनर्जी होती है। There is one law related to energy. Can you name that law? That is very important law. Yes, Deva.
Ma'am, energy can never be created nor destroyed, but it can be changed from one form to the another. Yes. That law is called law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted to another form. Can you give any one example of energy conversion? Ma'am, when we are using microphone, ma'am, Yes. our sound energy gets converted into electrical energy. बिल्कुल ठीक है. Ma'am, आपके then रूम when में it फैन भी reaches, चल रहा होगा. फैन चल रहा है, फैन मूव कर रहा Yes, है. ma'am. तो फैन की मूवमेंट जब हो रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? मैम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले नहीं, आपको कौन सी मिल कौन सी रही है? मैम विंड एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ना. यू आर गेटिंग द मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज फैन मूव कर रहा है. ओके, उसकी मूवमेंट से आपको क्या बेनिफिट होता है? उसकी मूवमेंट से बताओगे जरा सा. फैन की मूवमेंट से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? मैम हमें हवा लग रही है। ma'am, हवा मिल रही है। हवा लग रही है. तो मींस वो फैन जो है उसके ब्लेड्स की शेप स्पेसिफिक होती है. आपने देखो थोड़े से टिल्टेड होते हैं, उसके कारण से जो वो एयर को काटता है तो विंड मूव करती है. जो हमारे रूम के अंदर एयर है तो हमें हवा मिलती है, ठीक लगता है ना. बट उसके अंदर वो जो मैकेनिकल एनर्जी, उसको घुमाने का काम एक तो ये कि आप हाथ से घुमाओ, पर आप हाथ से तो घुमा नहीं रहे. आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल Yeah, एनर्जी। so you are giving the electrical energy. So electrical energy is converting into the mechanical energy, right? Yes. मैम बल्ब में जो केमिकल एनर्जी होती है मैम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। No. बल्ब में केमिकल एनर्जी कौन सी है? बल्ब की बात करो जो रूम में लगा है. वहां पे जो कंसेप्ट आएगा बेटा, वहां पे केमिकल एनर्जी नहीं है. वहां पे एक्चुअल में है बल्ब में आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी और उसके कारण से जो उसका फिलामेंट है बेटा दैट गेट हीटेड, और इतना हीट हो गया कि उसके कारण से आपको वहां पे जो लाइट एनर्जी है वो मिल रही है. सो देयर इज कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी. बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यस, बैटरी में जो केमिकल्स हैं दे आर कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो आपके पास अपने क्लॉक में जो सेल डाला है ना, वो जो सेल है दैट कंटेन सम केमिकल्स व्हिच आर कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, so law of conservation of energy is very important. According to this point, the total energy of the universe is constant. पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है. वो कम ज्यादा कभी नहीं हो रही. आज से मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जितनी एनर्जी थी पूरे यूनिवर्स में, आज भी उतनी ही एनर्जी टोटल यूनिवर्स की. ओके, नाउ डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन? कोविड ने ये टर्म तो सबको याद करा दिया. आइसोलेशन, मैम दूर रहना। दूर रहना, अकेले रहना. यस मैम। आइसोलेट होने मतलब अकेला कर देना, उसको बिल्कुल सबसे सेपरेट कर देना. तो आइसोलेटेड सिस्टम इज विच सिस्टम which is not in contact with any other. ऐसी कोई चीज जो किसी और चीज के साथ कांटेक्ट में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप लो बेटा थर्मस फ्लास्क. थर्मस के अंदर अगर आप चाय डालते हो तो वो गर्म ही रहती है ना बेटा. वो बात अलग है कि हम अपने लेवल पे बहुत अच्छा आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते कि वो कंप्लीटली आइसोलेट हो जाए. ऐसा सिस्टम बनाना मुश्किल है. अब थर्मस आप बनाओगे तो आपको चाय डालने के लिए उसमें जगह छोड़नी पड़ेगी, तो वहां से कुछ एनर्जी बाहर निकल जाती है. बट दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. तो देखो, अगर हम पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट कह रहे हैं तो ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड है, जिसका पूरे और किसी चीज के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो, उसकी एनर्जी भी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट. Got it? यस मैम। Yes.
there is one relationship for energy given by Einstein. याद है किसी को? मैम E is equal to mc square. Very Yes, good. ma'am. That is E is equal to mc square. ये क्या है बेटा? E for Ma'am, energy, m for mass of an mass. object. Mass of the material, and C is The speed of light in vacuum. speed of light. Yes, ma'am. That is speed of light in the vacuum or air. Okay. So this is the mass which can be converted to the energy. ये mass जो है ये convert किस में होगा बच्चे? Energy में. And this value of energy which we are getting by the very small change of mass, that is very, very high. And in the nuclear reactions यही energy produce होती है, जो थोड़ा सा mass है बेटा वो कम हो जाता है, और energy उससे क्या होती है? Produce. sun से जो आपको energy मिल रही है उसमें भी यही हो रहा है, बिल्कुल ठीक. In sun also the same process is going on. The mass of the material is decreasing and energy is producing. Right? Yes, ma'am. बट जो वो मास के अंदर एनर्जी बेटा, उस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं? एक टाइप से हम केमिकल एनर्जी ही तो कह रहे हैं. तो कन्वर्जन तो वो टोटल एनर्जी तो उसके अंदर भी थी ना, वो टोटल एनर्जी तो है, बट हम उसको सिर्फ डिफरेंट फॉर्म्स पे चेंज कर रहे हैं. जो वहां पे मास की फॉर्म में एनर्जी थी, जो केमिकल के फॉर्म में वहां पे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, वो वाली जो एनर्जी है दैट इज कन्वर्टिंग टू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी. रेडिएशंस क्रिएट हो रही है. ठीक है, तो एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ओके. Yes, ma'am. यस मैम यस बेटा. मैम क्या हम लोग एनर्जी और स्पीड इन लाइट वैक्यूम का स्क्वायर से मास निकाल सकते हैं? अगर आपके पास एक गिवन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, ठीक है, गिवन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को अगर आप सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यू कैन कैलकुलेट कि दैट एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मास. भी आपको कितना मास चाहिए कि वो एनर्जी, उतनी एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस हो. ठीक है. यस मैम. Yes. Next is mechanical energy is of two types. आप लोगों को टेस्ट मिला था कल कोई? यस मैम. कर लिया था वो? Yes, ma'am. Kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is due to Motion. motion, and potential energy is due to Rest. position. Due to motion and due to position. Okay. Now what is the value of kinetic energy? Formula for kinetic energy? Ma'am, Ke is equals to half mv square. Half mv square. Yes. What is m? And mass. Mass of the body which is in the motion. जो body move कर रही है उसका mass. And what is v? Ma'am, velocity. That is velocity. Yes, that is velocity. Right? And what is the formula for the potential energy? mgh. mgh. Potential energy is due to the position. Position को आप कई तरीके से चेंज कर सकते हो. Like आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रखा है, आप उस ऑब्जेक्ट को उठा करके 10 मीटर हाइट पे ले गए, तब आपने उसकी पोजीशन को चेंज किया. सो दिस इज हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ये एक हो गया. और कोई एग्जांपल बताओगे आप पोटेंशियल एनर्जी को कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट में कर सकते हो? मैम, अगर हम ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक
ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर दी आपने, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि हाइट उसकी 0 पहले थी, ग्राउंड फ्लोर पे आके उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0. एनी अदर एग्जांपल? आप लोगों ने वो वाली क्लॉक नहीं देखी ना, जिसमें पहले हम लोग के टाइम पे क्लॉक आती थी, ये टॉयज आते थे, कुछ टॉयज आपने देखे होंगे जिनके अंदर एक की होती है, उस की को हम रोटेट करते हैं तो वो उसके बाद, अभी टॉयज ऐसे वाले बंद हो गए शायद, है ना, शायद किसी को याद हो अपने बचपन में देखो Yes, कि ma'am. एक टॉय उसके अंदर एक की होती है, उस की को लगा के उसको रोटेट करते रहते हैं, Yes, करते ma'am. रहते हैं, करते रहते हैं, फिर Yes, उसको ma'am. छोड़ देते हैं तो वो टॉय जो उसकी अपनी मूवमेंट है उसको शो करता है। देखा आप लोगों ने, याद है किसी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो जो की से आप उसको रोटेट कर रहे हो ना बेटा, उसके अंदर एक्चुअल में क्या है, एक स्प्रिंग लगा होता है, आप उसके अंदर उसकी पोजीशन को सेट कर रहे हो, और उसके बाद उसके अंदर आपने एक पोटेंशियल एनर्जी डाल दी, उसकी पोजीशन को चेंज करके उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी को डाल दिया। अब उस पोटेंशियल एनर्जी ने धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना है, तो वो जो टॉय जिस टाइप की भी मोशन उसको शो करनी है वो शो करता है। पहले तो एक मंकी आता होता था बेटा, जिसके ऊपर ड्रम होता था उसके हैंड में, उसके हाथ में ड्रम स्टिक्स होती थी, तो वो बस अब जब हम उसमें की मूव करते थे तो वो ड्रम स्टिक से अपने ड्रम बजा लेता था। ये वाला टॉय होता था, बहुत कॉमन और बड़ा फेमस, बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। ओके, समझ आ गया बेटा? तो वहां पे पोजीशन चेंज की हमने, और वो उसके कारण उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर कर दी। अब धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, और वो अपना जो मोशन है वो शो करता है। ये स्प्रिंग है, इसको मैं इस तरफ बेंड कर दूं, बेंड करके मैंने छोड़ दिया, क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा फिर अंदर जाएगा, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई बेटा, फिर काइनेटिक एनर्जी। पहले मैंने इसमें पोटेंशियल डाली, फिर इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। मींस ये टू एनर्जीज एक दूसरे में क्या होती हैं, इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। मैम, यस, मैम कोई ऐसा एग्जांपल हो सकता है जिसमें मैम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हुई हो? अलग अलग मतलब? मैम मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो यूज हुई, पर मैम उसमें काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके, हाँ, ये है ना, ये एग्जांपल हो, आपने एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है, ये एक वॉल है, तो इस वॉल में आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के रख दिया, तो आपने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी, बस वो पोटेंशियल एनर्जी पड़ी है। ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कब होगा, जब आप इसको वापस से नीचे फेंकोगे। जब तक वो ऊपर रखा रहेगा तब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं आएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगी। ओके, ओके मैम। यस, के वन मैम यस, मैम फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है और गाड़ी को हम लोग धक्का दे रहे हैं, क्या वो गाड़ी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी? क्योंकि मैम हाँ, धक्का दे रहे हो, वो मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसके अंदर। अगर वो मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आपने उस पर वर्क किया। हाँ, एक ये चीज देखो, आप जो क्वेश्चन है उससे एक और पॉइंट देखो, आपने कहा कि एक गाड़ी है, बिल्कुल ठीक है, चलो ये गाड़ी हमने बना ली है ना, जैसी भी है बन गई, ये होगी गाड़ी हमारी, है ना। चलिए, ये गाड़ी को हमने फोर्स लगाया, हमने धक्का लगाया। अब हमारे धक्का लगाने से एक तो ये हो सकता है कि बिल्कुल मूव ना करे, जब बिल्कुल मूव नहीं की तो हमारा वर्क डन क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, तो इसके अंदर एनर्जी कोई भी नहीं आई। अब हमने इसको इतना फोर्स लगाया कि जो गाड़ी है वो आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गई, तो आपका वर्क कुछ ना कुछ तो आ गया। नाउ वर्क डन इज ग्रेटर देन 0। जितना आप वर्क करते हो ना बेटा, वो वर्क उसके अंदर किस फॉर्म में चला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क करते हो वो उसके अंदर एनर्जी में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो जितना आपने इसके ऊपर वर्क किया वही इसकी एनर्जी को चेंज करेगा। मान लीजिए आपने इसके अंदर 10 जूल वर्क
किया तो इस गाड़ी के अंदर डिस्प्लेसमेंट अगर हो गई तो इस गाड़ी की एनर्जी भी 10 जूल से इंक्रीज हो जाएगी, राइट? मैम अगर ऐसे 0.5 का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो आधी हो जाएगी ना, उससे मतलब कम। हाँ हाँ, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अकॉर्डिंगली मतलब होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है, समझ आया बेटा? मैम अगर दूसरी साइड अगर ले गाड़ी ले और उसे स्टार्ट कर दें, वो हिल रही है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तब वो काइनेटिक होगा या पोटेंशियल होगा? तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक तो सिर्फ मोशन के कारण है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, अगर वो मूव नहीं कर रहा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। मैम वो मूव नहीं कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, लेकिन वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट कर रहा है तब भी उसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके मैम। अब देखिए बेटा, ये एक बॉल है, हमने इसको किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंका, और ऊपर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, मान लीजिए ये यहां तक गया और फिर वापस नीचे आएगा, तो हमने किसी वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो यहाँ पे इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल डिक्रीज, एंड हियर यहाँ पे आकर के वो बॉल रुक गई, इसका मतलब यहाँ पे जाकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई बेटा? 0। और यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू mgh। मान लीजिए पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 5 जूल, तो अब यहाँ पर पहुंच करके उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 5 जूल, राइट? यस मैम। यस। फिर यहां से वो वापस चल रहा है, तो धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है, उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज इंक्रीजिंग, और यहां तक पहुंचने पे वापस उसके अंदर कितनी एनर्जी हो जाएगी? 5 जूल। ठीक है, समझ आया? यस लेकिन मैम। थोड़ा एनर्जी वेस्ट होगा ना मैम, जब हम हाँ बिल्कुल, वो friction क्यों वेस्ट होगा वो बताइए? वाई? सम के कारण। एनर्जी विल गेट वेस्ट। क्यों वेस्ट होगा? देवा के अलावा कोई और बच्चा बताए। बॉल को ऊपर फेंका, फिर नीचे आई, बहुत अच्छी बात बताई इसने। मैंने कहा यहाँ पे 5 जूल एनर्जी है, वापस आ गई, तो अगर 5 जूल एनर्जी फिर है तो ये तो उसको फिर वापस उतनी ही हाइट पे जाना चाहिए। आपने प्रैक्टिकली कभी नहीं देखा होगा कि बॉल वापस उतनी ही हाइट पे गई। बॉल यहाँ तक जाती है, फिर वो नीचे आती है, फिर वो जाती है ऊपर, कम हाइट तक जाती है, फिर वो नीचे आती है, फिर वो कम हाइट, और धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाती है। तो ये हर बार एनर्जी बराबर क्यों नहीं आ रही? होना तो बराबर चाहिए था। ग्रेविटेशन फोर्स मैम क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई हो। मैम ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो खुद ना, की तरफ ना, दिख रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो बराबर हो जानी चाहिए ना, या फिर बढ़ती। ग्रेविटेशन तो खींच रहा है तो वो तो और बढ़ाएगा। मैम देवा। काइनेटिक एनर्जी नीचे आते आते मैम कम हो जा रही है। कम क्यों हो रही है? बात ठीक है, कम हो रही है, बिल्कुल ठीक है, कम क्यों हो रही है? यस देवा। क्योंकि हमारा जो एयर में फ्रिक्शन के कारण कम होता है, यस, और जब नीचे गिरते हैं तो साउंड एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा। हाँ, क्योंकि देखो जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो एयर उसको फ्रिक्शन दे रही है, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर कुछ एनर्जी उसको उसको हीट अप करने में यूज हो गई, गर्म हो जाती है बॉल। फिर जब वो नीचे गिरी तो आवाज, साउंड प्रोड्यूस हुई, सो सम एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ साउंड आल्सो, राइट? मैम। ऊपर जाएगी तब भी कुछ एनर्जी जो है आपकी वो कम होगी, तो टाइम टू टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों डिक्रीज होती जाएंगी। दोज एनर्जीज आर कन्वर्टेड टू दी अनदर हीट एनर्जीज। यस। मैम अगर वो रबड़ की बॉल होगी तो उससे अपने शेप को चेंज करने में भी, यानी अपने हाँ बिल्कुल, डालने के लिए भी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हाँ कुछ शेप भी चेंज हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। यस आर्यन। मैम जैसे हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो डिस्टेंस है मैम, उसमें किसी एक पॉइंट पे हम एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला?
ये बेटा mgh हाइट से निकालोगे? नो मैम, जैसे मैम मान लीजिए पीई हमने जो है उसको ए पॉइंट दे दिया और केई को हमने बी पॉइंट दे दिया, तो उसके बीच में अगर हम कोई सा भी पॉइंट लेते तो उस टाइम पे उस बॉल की जो मतलब उस मटेरियल का जो एनर्जी रहेगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं? ओके, एक क्वेश्चन है ऐसा फिर। यस मैम। ये आपने 9th क्लास में किया नहीं बेटा क्वेश्चन ऐसे? कितने क्वेश्चन तो थे एनसीईआरटी में ये वाले? ओके, हम लोग लेते हैं एक्चुअली मेरे पास अभी 9th की बुक, चलो ट्राई करते हैं। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है बेटा। यस सिमरन, डू यू हैव एनी डाउट? मैम वो बॉल अगर ऊपर नीचे जाते हुए अगर हीट अप होती तो मैम उसकी हीट हमें क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि देखो वो क्या है, ऊपर नीचे आती है तो जो हीट प्रोड्यूस है, पहली बात तो वो कम होती है, दूसरा है कि वो जो हीट है वो एटमॉस्फेयर के साथ डिसिपेट भी हो जाती है, तो आपको उतना फील नहीं होता। अब फैन को देखो, फैन रोटेट हो रहा है, फैन गर्म होता है कि नहीं होता? यस मैम। होता है ना। तो वो हीट एनर्जी, जितनी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन को दे रहे हो, सारी की सारी एनर्जी दैट इज नॉट कन्वर्टिंग टू द मैकेनिकल एनर्जी। मैम यस। मैम आप प्लीज मैम जो आपने आज करवाया है मैम एनटीएससी हाँ में, हाँ बेटा मैम बोलो। मैम उसके मैम पिक्स आप मैम वो सितंबर वाले ग्रुप में मैम डाल दीजिए, क्योंकि मैम मेरा नेट मैम बहुत ज्यादा ओके स्लो है मैम। सहज, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 9th में। ओके ठीक है बेटा, आई विल सेंड। थैंक यू मैम। आप ऐप में हो सहज बेटा? अपने ऐप डाउनलोड कर रखे हैं? यस मैम। तो उसमें तो सर आई थिंक पूरी वीडियो डाल देते हैं। ओके मैम। हाँ, तो आप वहां से भी देख सकते। ओके, ये जैसे 10 मीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने वेलोसिटी जो ली, दैट इज स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको ऐप में आपको व्हाट्सएप कर दूंगी इस क्वेश्चन को करके, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालना, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा जो आपको मैं इसको बता सकूं, तो क्वेश्चन लिख के इसको सॉल्व करके मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है बेटा। जिस किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम किसी भी हाइट पे यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, कितनी कौन सी एनर्जी है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके कैसे करना है वो आपको आई विल सेंड इन व्हाट्सएप, ठीक है। ओके मैम। यस, नेक्स्ट इज पावर। क्योंकि वैल्यू मैंने गलत ले ली, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी पूरे फार्मूला में, पूरे क्वेश्चन में। यस, व्हाट इज पावर? आर्यन, अरहम, सॉरी अरहम। मैम रेट ऑफ डूइंग द वर्क। यस, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब आप रेट से क्या समझते हो? जनरली हम जब शॉपिंग जाते हैं तो हम कहते हैं इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है ना, ये वो रेट नहीं है, दिस इज समवट डिफरेंट। यस रितंजय। मैम रेट मींस चेंज। चेंज ऑफ डूइंग वर्क टाइम। सिमरन। मैम रेट मीन्स किसी भी काम को करने में कितना भी समय लगे। यस, वर्क डन पर सेकंड। देखो मान लो मैंने एक हमारे पास पर्सन है ये, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए, एक पर्सन है बी, इन दोनों को हमने काम दिया, एक काम दिया, एक जैसा काम दिया, दोनों एक टाइम पे शुरू हो गए। इसने तो उसको 30 सेकेंड 30 सेकेंड मिनट ले लेते हैं, 30 मिनट में कंप्लीट कर दिया बेटा। और इसने लगा दिया पूरा का पूरा 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर लगा दिया उसी काम को खत्म करने में। तो किसकी पावर ज्यादा है? दिस वन, क्योंकि इसने जल्दी काम किया। द रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस वर्क डन पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना काम किया। सो पावर इज इक्वल टू W अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम।
लेसर द टाइम मोर इज द पावर, कम टाइम में ज्यादा काम किया उसकी पावर ज्यादा, राइट? नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? Joule. And what is the unit of time? That is second. So the unit of power is joule per second, and this is also denoted by watt W. इसको हम watt भी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है? ये जो वॉट है इसकी डेफिनेशन आ जाती है बेटा, व्हाट इज दी 1 watt? One watt is equal to Ma'am, 1 joule per second. if the work done is 1 joule in 1 second. देखो 1 ये कब आएगा? एक्चुअली P is equal to 1 joule upon 1 second, तब ये 1 watt आएगा ना बेटा. तो 1 joule work is done in 1 second, then the power of that is 1 watt. Okay. Watt is very small unit. अब कमर्शियली जब हम पावर यूज करते हैं, अब एसी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, फोन, ये फैन भी चलता है, तो जो हमारी पावर जो हम यूज करते हैं पर मंथ वो ज्यादा होती है, इसलिए हम इसके लिए एक बड़ी यूनिट का यूज करते हैं, दैट इज किलोवाट. किलो मीन्स 1000. Kilo means 1000. So that is equal to 1000 watt. Kilowatt is equal to 1000 watt. Okay. एक और टर्म यूज होती है बेटा, मेगावाट. ये बहुत सुना होगा आपने. जब आप पावर प्लांट की बात करते हैं तो पावर प्लांट जो है वो जनरली बताए जाते हैं इतने मेगावाट का, ये वाला जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इस जो यूनिट है इसकी इतनी मेगावाट पावर जो है प्रोड्यूस करता है ये, तो वो मेगावाट वहां पे थर्मल, आपके घर में जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं या कहीं पे हम यूज करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ किलोवाट. और जो पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे पावर प्रोड्यूस की जाती है तो वो तो बहुत ज्यादा करते होंगे, उन्होंने तो हर घर में सप्लाई दे रही है, हर इंडस्ट्री को सप्लाई दे रही है. सो दैट इज इन द मेगावाट. यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेगा? 1 million. 1 million means 1 million means 10 lakh. 10 lakh, और we can write 10 raised to power 6. 10 lakh बिल्कुल ठीक. मिलियन ये इंडियन सिस्टम नहीं है, इंडियन सिस्टम में लाख करोड़ ये चलता है, ये आपका दूसरा सिस्टम है, इसमें 1 million is equal to 10 lakh. 10 raised to power 6. ओके. पावर की एक और बहुत यूनिट हम बहुत कॉमनली पहले यूज होती थी बेटा, दैट इज हॉर्स पावर. ये एनटीएससी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. 1 horse power is equal to, that is 746 watt. यस, रितंजय ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है मेगावाट को. ये एनटीएससी का एक ऑप्शन बन सकता है बेटा. 10 raised to power 6 watt नहीं मिला तो, क्योंकि देखो एमसीक्यू में सिर्फ आपकी जो आईक्यू है ना और प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे वो चेक की जाती है. तो रितंजय ने चैट में लिखा 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. 30 यहाँ पे हो गई, 1000 into 1000 हो जाएगा, 10 raised to power 6 ही आएगा, है ना? Yes, ma'am. Yes. So this is power. Now power has one another formula. Work is force into displacement. So we can write force into displacement upon time. लिख सकते हैं इसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And what is the displacement per unit time? And velocity. Velocity. बिल्कुल ठीक. So power is equal to force into
velocity. This is the another formula of the power, that is force into velocity. Okay. Yes, ma'am. Yes. Next, if there is a bird and that is flying in the sky. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये. तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है? मैम रिपीट कर दीजिए. A bird is flying in the sky. मैम मैकेनिकल एनर्जी मैम बोथ. Yes. मैम बोथ that- इन बोथ. Yes, that has mechanical energy. क्योंकि वो ग्राउंड से कुछ स्काई मतलब कुछ डिस्टेंस पे है, तो उसके अंदर एच के कारण, हाइट के कारण उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है और वो मूव कर रहा है, सो दैट इज आल्सो हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी. तो एक बर्ड अगर फ्लाई कर रहा है तो उसके अंदर दोनों टाइप की एनर्जी आपको मिलेगी. ठीक है. Yes, ma'am. सेम अगर एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया ऊपर से, तो मिड वे में उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, बोथ, नो, जीरो एनर्जी? मैम बोथ. Both. बोथ. उसके अंदर काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है. नाउ नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन. डिस्प्लेसमेंट हर बार इधर है and this is the direction of the force, in which case you will get the maximum work. I'm in fourth case. मैम इन फोर्थ केस. In fourth case. And in which case there is minimum work? I'm in third case. In third case. थर्ड वे. Yes, third case, क्योंकि वहां पे जो आपका दोनों परपेंडिकुलर हो गए and due to perpendicular, that is 0. Right? यस मैम. Yes. ये वाला जो बेटा वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, इसको आपको बताती हूँ. ये वाला हमने जो फार्मूला क्यों किया था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये फार्मूला हमने क्यों यूज किया था. नहीं, वो इससे नहीं होगा. Yes, a total of 490 joule energy was used in lifting a 5 kilogram mass. So find the height up to which the mass can be raised. So if you are raising this, so there is potential energy, and potential energy is equal to mgh. 490 potential energy, mass is 5, and the value of g is 9.8. 9.8. Yes, exact value is 9.8, and sometimes we take it as 10. 10. So h is equal to 490 divided by 5 into 9.8. You can calculate this.
I think this will Ma'am, be 10. 100. 100 आएगा और 10. मैम 10। Yes, 10. Yes, this is equal to 10 meters. समझ में आया कैसे लगाया बेटा ये फार्मूला? यस मैम। यस मैम। ओके, फोटो सेल सुना है बेटा आप लोगों ने? मैम क्या? फोटो सेल। मैम सोलर से Yes. related है ना? बिल्कुल ठीक। फोटो मीन्स लाइट, फोटोसिंथेसिस। आपकी अपनी फोटो जो बनती है ना उसको भी फोटो कहा जाता था पहले, तो आजकल पिक्स, स्नैप्स, ये सब वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसा सेल जो किस पे काम करता है बेटा? लाइट पे, यानी कि लाइट से उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है ये बताइए जरा। मैम लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीएससी कि इसमें कौन सी एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा है। ये स्टूडेंट्स इतना सबको समझ में आ गया वर्क, एनर्जी एंड पावर का टॉपिक? यस मैम। वेरी गुड। सो आप जो है साइंस की क्लासेस आई थिंक इसी मंथ लगनी थी आप लोगों की। अब आई डोंट नो सर ने आपको क्या बोला था, कितना टाइम तक आपकी साइंस की क्लासेस लगेंगी बेटा? तो आज आपकी मे बी साइंस की लास्ट क्लास हो। मैं 1 वीक तक सर ने कहा था। हाँ ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ग्रेविटेशन। यस रितंजन। मैम मेरा लाइट में एक डाउट था। बोलो। मैम लाइट में ये था कि मैम लाइट, मैम फोटॉन्स होते हैं उसके अंदर लाइट्स में। तो मैम जब मिरर रखते हैं तो मैम मिरर में फोटॉन्स कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं? मिरर में फोटॉन्स ट्रांसफर कहाँ होते हैं? मीन्स अगर मिरर रख देंगे तो वो इजीली पास हो जाते हैं। मिरर में से तो रिफ्लेक्ट होंगे, ग्लास में से पास होते हैं। ग्लास मैम। हाँ, ग्लास में से पास होते हैं। तो ये तो लाइट की प्रॉपर्टी है दैट इट कैन ट्रेवल फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट ना, क्योंकि उसमें से लाइट जा सकती है। तो मैम वो तो मैम एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जाए तो मैम उसके आर पार कैसे जा सकते हैं? जो फोटोन का साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज लाइक रेडिएशंस, तो वो उसमें से निकल सकती है। तो फिर बाकी में से क्यों नहीं जाती? बाकी ऑब्जेक्ट्स में से क्या है कि वो ओपेक है, उनकी प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। 3 तरीके होते हैं बेटा लाइट के, जब आप लाइट फॉल करते हो। यस, बाकी स्टूडेंट जो है जिनका ये डाउट नहीं है दे कैन लीव द मीटिंग। एक्चुअल में क्या होता है आपके पास, एक तो होता है रेडिएशन, ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट। ठीक है, ट्रांसमिट का मतलब जो अपने में से पास होने देता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जो उसको वापस भेज देता है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो है जो अपने में से ट्रांसमिट करने देता है, वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आप अगर उस ग्लास के ऊपर पेंट कर दोगे तो उसकी ट्रांसमिट पावर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जो पेंट है उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, उसको स्कैटर कर देता है लाइट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस कि वो